Assalamualaikum students, I hope you all are fine and taking good care of your health at your home. Today it's our first lecture of your third term syllabus, class 6, subject science. Unit number 6, how things work, and it's chapter number 13, electric current and circuits. We will discuss today what is electric current and circuit. First of all, I'll tell you that this universe is made up of matter, and this matter is made up of very teeny particles called atom. What is the structure of atom? The structure of atom consists of electron, you can see on the board, electron, proton, neutron and a nucleus. Nucleus is the central part of the atom. It contains positively charged particle called proton and having no charge called neutron. Means neutron पर कोई charge नहीं होता. And negatively charged particles electron. Electrons can move in its orbit. In atom, electrons can move in its orbit, while the proton and neutron is placed in the nucleus. The movement of electrons की movement से ही कोई भी atom जो है वो अपनी stability gain कर सकता है. So the movement of electrons is the flow of electric current. In other way, we can say that electric current is the movement of negatively charged particles called electrons, or electricity is the continuous flow of the electrons or negatively charged particles. Now, what is circuit? Circuit is the combination of cell or a battery connecting wires, तारें जो wires हम use करते हैं, and a switch. Switch is used to control the opening and closing of the circuit. In this chapter, we will discuss electricity, electric cell, battery, electric bulb, electric circuits of torch, conductors and insulators. So students, I'll read some lines from your book that each and everything in the world is made up of teeny particles known as atoms. Every atom consists of nucleus containing neutrons and protons. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, and neutrons carry no charge. Afterward, particles called electrons revolving around the nucleus in their specific orbits. Electrons जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है अपने स्पेसिफिक पाथवे पर. स्पेसिफिक ऑर्बिट कहलाता है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स का पाथवे. Electrons move from one atom to another. This movement of electric charge produces an electric current. Electric current of electricity is the flow of movement of electric charges per unit across the cross section of an electric wire. What is electric cell? Have you ever seen different types of cells? Yes, you have used cells in your daily routine life. I'll show you one kind of cell. ये देखें, ये एक सेल है. आप लोग नॉर्मल रूटीन में अपने रोबोटिक टॉयज जो होते हैं आपके, अपने टॉयज की रनिंग में, वॉल क्लॉक में आप ये सेल यूज़ कर रहे होते हो. और इस सेल की स्ट्रक्चर क्या है, ये सेल बना कैसे है, कभी आपने इस चीज़ को नोट किया है? आई टेल यू सम लाइन्स अबाउट दिस सेल. जैसे कि स्टार्ट करती हूँ. अ सेल हैज़ टू टर्मिनल. वन इज पॉजिटिव टर्मिनल and other one is the negative terminal. You can see on the cell, ये small cap वाला जो portion होता है ये positive terminal होता है, और ये second side इसका negative terminal कहलाता है. ठीक है बेटे? And the direction of electric current is always from positive terminal to the negative terminal. यहाँ write भी कर देती हूँ मैं आपको.
Direction of current is always from positive to the negative terminal. जी बेटी, इसके साथ देयर आर सम केमिकल्स इनसाइड द सेल. इस सेल को अगर आप ओपन करके देखें, इसमें आपको एक केमिकल टाइप मटेरियल नजर आते हैं. ये केमिकल चार्जेस पर कंसिस्ट होता है, और जब किसी भी केमिकल में ये केमिकल्स जो इसके अंदर मौजूद हैं, इसमें केमिकली रिएक्शन हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी सेल में स्टोर्ड होते हैं, और ये केमिकल एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Means a cell stored energy in the form of chemical energy and gives us to as an electrical energy. Understand? After that, battery. What is battery? Battery is the series combination of identical cells. For example, हम इसको देख भी लेते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स. जैसे मैंने आपको बताया है कि करंट की डायरेक्शन जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है. इसी तरह बेटे आपने मैग्नेट भी स्टडी किया हुआ है. मैग्नेट क्या होते हैं? टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, और उसमें हम कहते हैं साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. सेम पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वाइल डिफरेंट पोल्स या ऑपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. सिमिलरली जब हम एक सर्किट बना रहे होते हैं तो हमारा जो हम मेन थिंग फोकस करते हैं वो ये होता है बैटरी का या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ होता है विद द नेगेटिव टर्मिनल, एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ होता है विद द पॉजिटिव टर्मिनल. तभी आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट होता है, तभी एक कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है आपके पास. आप देखिए, ये है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, स्मॉल कैप साइड पॉजिटिव टर्मिनल. आप इसको कनेक्ट करेंगे सीरीज वाइज, इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. आप इसे कनेक्ट करेंगे विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, एंड सिमिलरली दिस पॉजिटिव टर्मिनल विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन अदर सेल. नाउ अ बैटरी इज मेड. अब यहाँ पर एक बैटरी कंप्लीट हो गई है. आपको एक और दिखा देती हूँ. इस तरह की कुछ बैटरीज जो हैं वो भी यूज की जाती हैं. क्या होता है, ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, वन साइड पर आप देखिए पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी साइड पर नेगेटिव टर्मिनल मौजूद है. सिमिलरली ऑन अदर साइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल जो है इस तरह से एक दूसरे से अटैच किए हुए होते हैं. ये भी एक टाइप है बैटरी के. अब बेटे there are two types of the battery. One is the primary battery and another one is the secondary battery. Ordinarily available batteries last as long as the chemical inside them are used up. अब बैटरीज की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है इसमें केमिकल्स किस टाइप के यूज़ किए हुए हैं. कुछ केमिकल्स जो होते हैं बेटे वो रिचार्जेबल होते हैं और कुछ बैटरीज रिचार्जेबल नहीं होती. फॉर एग्जांपल ये जो बैटरी मैंने पकड़ी हुई है ये प्राइमरी सेल है, प्राइमरी बैटरी है, ये रिचार्जेबल नहीं है. ये एक बार यूज़ कर लेंगे केमिकल्स चार्जेस अपने तो दोबारा इसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते. सो दिस टाइप ऑफ बैटरीज विच आर नॉट रिचार्जेबल आर कॉल्ड एज द प्राइमरी बैटरीज. अब बेटे once the chemicals of these batteries are consumed, they need to be replaced with a new one. एक बार ये बैटरी अपने केमिकल्स यूज कर लेती है तो हमें बैटरी ही चेंज करनी पड़ती है. These are called primary batteries. Simple dry batteries and mercury batteries are the examples of the primary batteries. Some cells are rechargeable. जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सेल्स को हम रिचार्ज कर सकते हैं अगेन यूज के लिए, और वो बैटरीज कहलाती हैं सेकेंडरी बैटरीज. They provide current as a result of reversible chemical reaction. A group of reversible or rechargeable secondary cells acting as a unit and called as the secondary batteries. अब इसके अलावा बेटे a chemical reaction that involves transfer of electrons is known as electrochemical reaction. अब इस सेल के अंदर आपको बताया हुआ केमिकल स्टोर्ड होते हैं ना, कार्बन भी मौजूद होता है और वो कार्बन प्लेस जो हुआ होता है वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स में प्लेस हुआ होता है. अब उस केमिकल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. आपको बता रही हैं दैट द केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मूवमेंट ऑफ व्हाट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इनसाइड द केमिकल्स is called as a electrochemical reaction. Means एक सेल में, एक बैटरी में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी एंड प्रोवाइड अस एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी.
सम कॉमनली अवेलेबल बैटरीज आपको नेम शेयर कर देती हूँ। अल्कलाइन बैटरीज, अल्कलाइन बैटरीज जो हैं वो इनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है एंड परफॉर्म बेटर। यूजुअली दीज बैटरीज लास्ट 5 to 8 टाइम्स लॉन्गर एज कम्पेयर टू जिंक कार्बन बैटरीज। इसके अलावा लिथियम सिलेंड्रिकल बैटरीज होती हैं जो नॉर्मली वॉच अगर आप देखें आपने जो पहनी हुई होती हैं उसको कभी आपने ओपन कर देखा है, उसमें जो सेल यूज हुए होते हैं ना वाइट कलर के, वो होती हैं लिथियम सिलेंड्रिकल बैटरीज। लिथियम कॉइन टाइप बैटरीज भी होती हैं उन्हीं में, एंड सोलर बैटरीज। सोलर पैनल्स भी आजकल आप नॉर्मली हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो आप सोलर पैनल्स में देख सकते हैं किस टाइप की बैटरीज यूज़ हो रही हैं और उस पर आप सर्च करें कि इसके फंक्शन क्या है और ये कितनी लाइफ रखती है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड कर सकती है। अब बेटे इसके साथ लिथियम कॉइन टाइप बैटरीज आर यूज्ड इन वॉचेस। कॉइन टाइप बैटरीज होती हैं कैलकुलेटर्स, टॉर्चेस, टॉयज etc. A solar battery converts sunlight into the electricity. The next topic is electric bulb. Electric bulb बेटे you can see in the diagram. A bulb is an evacuated glass chamber. There are two metallic wires and the tungsten filament. These two ये दो metallic wires जो हैं ये फिक्स करती हैं एक टंगस्टन वायर को, इसे हम फिलामेंट भी कहते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में ये ब्लोन अप ग्लास है जिसे मैं इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर भी कह रही हूँ। ये फिलामेंट है एंड इट इज मेड अप ऑफ द टंगस्टन वायर। दीज आर टू मेटालिक वायर्स। ये मेटालिक वायर्स आयरन की या कॉपर की भी हो सकती हैं। दीज आर सपोर्टिंग वायर्स। सपोर्ट किसको करिए? ये फिलामेंट को, टंगस्टन को, जो आपको लाइट प्रोवाइड कर रहा है। नीचे क्या होता है? इसे होल्डर भी कहते हैं। आप बॉयज जो हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर होते हैं। एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं आप लोग अपनी साइकिल्स में, मोटर बाइक्स में। इसके अलावा अपनी जो टॉयज यूज़ करते हैं रोबोटिक स्पेशली, उसमें एलईडी बल्ब्स यूज़ होते हैं। तो बॉयज़ को तो बहुत अच्छी तरह से पता होते हैं और गर्ल्स भी इस चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करें कि बल्ब का स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है। बल्ब इज एन इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर which contains two metallic wires. ये कैप्चर करती हैं, ये सपोर्ट करती हैं फिलामेंट को which is made up of the tungsten and it all ये सारा का सारा जो है होल्ड किया जाता है by the holder. Holder is what holder has the metallic base and it also has two terminals like the cell or the battery. होल्डर के टू टर्मिनल्स होते हैं बेटे। ये जो दो मेटालिक वायर्स आपको नजर आ रही हैं इनके दो एंड्स यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं आपको, लेकिन वो इस तरह से कनेक्ट हुए होते हैं। एक मेटालिक वायर का एंड यहाँ इसके पॉजिटिवली, ये पॉजिटिव चार्ज है। आप देख सकते हैं ये स्मॉल कैप पोर्शन है सेल की तरह का, जैसे ये सेल में आपको नजर आ रहा था। ये स्मॉल कैप पोर्शन है और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसी तरह ये बल्ब में ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो मेटालिक वायर्स की एक जो है एंड यहाँ कनेक्ट हुआ होता है और दूसरी मेटालिक वायर का एंड एक यहाँ होल्डर के अप साइड कनेक्ट हुआ होता है। क्यों ये अलग अलग कनेक्ट करते हैं? अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स या पॉजिटिव और नेगेटिव एंड एक दूसरे को टच कर लेंगे तो क्या होगा? सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसे करंट प्रोवाइड करना है ना बैटरी ने। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ अटैच होगा। ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ अटैच होगा। आप जब इसे अटैच करेंगे, मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगी भी, तो आप देख लीजिएगा। अभी इसकी आप बुक की रीडिंग आपके साथ थोड़ा कर देती हूँ। कैसे? द स्मॉलेस्ट डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोवाइड अस लाइट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब। द बल्ब यूज्ड इन अ टॉर्च। आप अपनी बुक में डायग्राम में भी देख सकते हैं, आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से डिटेल में डायग्राम शो की हुई है। द टॉर्च बल्ब हैज अ ग्लास चैम्बर विच इज फिटेड ऑन अ मेटालिक बेस। द ग्लास चैम्बर इज इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर विच मीन्स दैट इट हैज अ वैक्यूम इनसाइड इट। क्यों एक वैक्यूम होता है इसमें? ताकि एयर एंटर नहीं हो। और ये जो टंगस्टन वायर है, ये टंगस्टन वायर हीट प्रोड्यूस करती है, ये हीट प्रोड्यूस करती है। और हीट प्रोड्यूस, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो चार्जेस हीट प्रोड्यूस हुई है वो हीट एयर एंटर ना हो इस इवैक्यूएटेड, इस वैक्यूम एरिया में एयर एंटर ना हो और आपस में कोई रिएक्शन ना कर लें, कोई ब्लास्ट ना हो जाए। दैट्स वाई जो ये ग्लास होता है, ये इवैक्यूएटेड चैम्बर होता है, बिल्कुल वैक्यूम होता है, इसमें एयर एंटर नहीं हो सकती। अब बेटे inside the bulb there is a fine tungsten wire supported by the two thick wires. The thin tungsten wire is called as the filament. I told you
आपकी रीडिंग में भी है बेटे। आपने ये साथ साथ रीडिंग करनी है, आपने समझना है अपने चैप्टर को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, आपके डेली लाइफ में यूज़ होता है। और स्पेशली अप्लायंसेस जो आप देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब की ही मैं तो अभी आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कितना यूज़ है लाइट का। आप देखिए लाइट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक बल्ब का स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है, रोशनी दे रहा है हमें, जबकि ऑपरेट तो ये इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। तो क्या है, ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, टंगस्टन वायर हीट अप हो जाती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हमें प्रोवाइड कर देती है। अब द filament in the bulb which glows when there is a flow of electric current through it and it gives off the light. The metallic base of the bulb is called as the holder. I told you ये metallic base जो है ये holder कहलाती है। आप अपनी बुक के डायग्राम में भी देखिएगा बेटे। मैं यहाँ बल्ब भी एक लेकर आई हूँ आपको दिखाने के लिए। ये बल्ब, इसमें आप बहुत कीनली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर है। इसमें अगर आप क्लोज लुक लें इसका, आप देखिएगा आपको टंगस्टन वायर भी नज़र आ रही है, 2 मेटालिक बेस भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। और ये दोनों वायर्स जो हैं एंड हो रही हैं इस होल्डर में। और इस होल्डर में इसका कनेक्शन कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया, एक मेटालिक वायर का एंड कनेक्ट हुआ है यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरी मेटालिक वायर का एंड कनेक्ट हुआ इधर ऊपर होल्डर की ऊपर वाली साइड। अब बेटे वो बता रही है आपको, आउट ऑफ 2 supporting wires, one is internally connected to the metallic base case holder of the bulb, the other wire is connected to the metallic tip at the base of the bulb, ठीक है। अब आप अपनी घरों में टॉर्च होती हैं, आप उन टॉर्च के जो छोटे LED बल्ब होते हैं, दिस टाइप ऑफ बल्ब, इसके अलावा इससे थोड़े बड़े साइज में भी बल्ब होते हैं ना, इससे छोटे साइज के बल्ब। अब आप बेटे वो बल्ब लीजिएगा और उस बल्ब से, मैंने आपके होमवर्क में भी मेंशन किया है, आप जो है एक मॉडल प्रिपेयर करेंगे और वो मॉडल होगा ओपन एंड क्लोज्ड स्विच का। अभी बेटे ओपन एंड क्लोज स्विच आपको मैं इसकी भी डिटेल बताऊंगी हमारे नेक्स्ट टॉपिक सर्किट में, व्हाट इज ओपन एंड क्लोज स्विच। हम साथ ही रीड आउट करेंगे। आपने ये मॉडल भी प्रिपेयर करना है, सर्किट बनाना है जिसमें आप यूज करेंगे कनेक्टिंग वायर्स, अ स्विच एंड अ बल्ब, ओके। एंड यू विल शो दैट व्हाट विल हैपन व्हेन द स्विच विल ओपन एंड व्हाट विल हैपन व्हेन द स्विच विल क्लोज। Along with this, I'll tell you that it's your, do you know, activity and electric current I. I is फ्रेंच फ्रेज वर्ड है, ये करंट के लिए यूज होता है। इंटेंसिटी I is the unit used for the current and not the unit is the symbol used for the current. It is defined as a quantity of charge Q. Q is derived from the word coulomb that flows per unit time across the cross section of the wire. करंट की मेजरमेंट अगर हम करते हैं तो वो होती है I is equal to Q over T. The SI unit of the measuring current is ampere and ampere जो नेम है वो इस साइंटिस्ट के ऑनर, साइंटिस्ट का नेम था और उसके ऑनर में करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर रख दिया गया। इसके साथ बेटे हम डिस्कस करेंगे अ टॉर्च बल्ब। सॉरी, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है दैट व्हाट आर सर्किट्स। सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विच एंड अ बैटरी। मींस अगर आप एक सर्किट को देखें, कम ऑन दिस डायग्राम, आप इसमें देखें बेटे, ये इलेक्ट्रिक वायर्स आपको नजर आ रही हैं जिसे मैं कनेक्टिंग वायर्स भी कह रही हूँ, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और द करंट। एक सेल, दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर द सेल। सेल के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल यूज किया हुआ है। एंड दिस इज द स्विच एंड दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ एन ओपन सर्किट और यू कैन से अ ओपन स्विच। स्विच इज ओपन नाउ। आप देखिएगा बेटे, ये सेल करंट प्रोवाइड कर रहा है। हमने कहा था दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब आप इसमें देखें, ये जो कनेक्टिंग वायर है ये इस स्विच को टच नहीं करेगी,
मीन्स ये सर्किट इस वक्त क्लोज नहीं हुआ, कंटिन्यूस फ्लो नहीं बना ना इलेक्ट्रिक करंट का, चार्जेस का कंटिन्यूस फ्लो नहीं ना बना। अब नेक्स्ट इसमें देखें आप, ये स्विच, ये वायर जो है कनेक्टिंग वायर इस स्विच को टच करेंगे, नाउ ये आपके पास कंटिन्यूस फ्लो है, ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फिर मैं आपको बता रही हूँ दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या है, आपको ये डायरेक्शन विद द एरो हेड जो है वो शो की जा रही है कि करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल है। आप देखिएगा इस सर्किट में, इस डायग्राम में बल्ब जो है वो ऑन हो गया है, लेकिन इस डायग्राम में स्विच ऑफ है, कंटिन्यूस फ्लो नहीं बन रहा, तो आपके पास बल्ब ऑफ है, बल्ब ऑन ही नहीं होगा क्योंकि उसके पास चार्जेस सप्लाई नहीं हो रहे, चार्जेस पहुंच ही नहीं रहे ना। आपकी बुक में डायग्राम है, देखिएगा बुक पेज नंबर 135। ये 4 एक्टिविटीज आपको बता रही हैं कि आपने कैसे जो है वो बल्ब को कनेक्ट करना है विद द बैटरी। यहाँ हम एक एक्टिविटी करते हैं, ये देखिएगा मैं सेल को ज्वाइन कर रही हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब आप देखें ये 2 वायर्स हैं बल्ब की, ठीक है, ये मैं कनेक्ट करूंगी, ये देखिए बल्ब ऑन हो गया। अब अगर मैं ऐसे करती हूं, यानी दोनों वायर्स मैं इसके नेगेटिव टर्मिनल पर लगा देती हूँ, जस्ट एक क्लोज लुक लीजिएगा, दोनों वायर्स नेगेटिव टर्मिनल पर लगा दूंगी, बल्ब ऑन नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरह करती हूँ, दोनों वायर्स में इसके, दोनों वायर्स इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर लगा देती हूँ। ये दोनों वायर्स पॉजिटिव टर्मिनल पर लगा दूंगी तो क्या होगा, बल्ब ऑन नहीं होगा। तो जरूरी है बल्ब ऑन करने के लिए आप वायर का एक एंड कनेक्ट करें विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एक एंड आप कनेक्ट करें विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और आपके पास बल्ब ऑन हो जाएगा। सो बेटे ये एक्टिविटी दिखाने का पर्पस, ये प्रैक्टिकली दिखाने का पर्पस ये है कि आप सब, थैंक यू, आप सब ये देख लीजिए कि बैटरी को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप वायर का वन एंड कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से एंड अदर एंड कनेक्ट करेंगे विद द नेगेटिव टर्मिनल, तभी आपके पास सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा। अब आप अपनी बुक पर आते हैं, बुक पर देखिएगा ये डायग्राम आपकी, ये एक कनेक्टिंग वायर कनेक्ट हुई हुई है, यहाँ था बल्ब का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये डाउन जो है इसका स्मॉल कैप पोर्शन, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इन्होंने क्या किया, सेल से जो 2 वायर्स कनेक्ट थी वो कनेक्ट कर दी हैं विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द होल्डर, तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ है। फिर सेकंड डायग्राम में आप देखिएगा ये बल्ब की, ये बैटरी की दोनों वायर्स जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स वाली, इन्होंने कनेक्ट कर दी हैं बल्ब के जस्ट पॉजिटिव टर्मिनल पर, तो क्या हुआ, बल्ब ग्लो फिर नहीं हुआ। अब आप सी डायग्राम पर देखिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल वायर है, ये नेगेटिव टर्मिनल वायर, ये पॉजिटिव कनेक्ट किए इन्होंने नेगेटिव पोर्शन के साथ बल्ब के, ठीक है, और नेगेटिव पोर्शन यानी नेगेटिव जो टर्मिनल है सेल का, नेगेटिव वायर जो है ये कनेक्ट किए विद द पॉजिटिव एंड ऑफ द बल्ब, क्या हो गया, बल्ब ग्लो हो गया। अब नेक्स्ट आप देखिए इन्होंने वायर जो है वो जम्बल कर दी है, जस्ट आपको क्रॉस दिखा रहे हैं कि फिर भी बल्ब जो है ये डिफरेंट पोल्स पर ही, अपने डिफरेंट एंड्स पर ही, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, यानी इसका सर्किट कंप्लीट हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव ना, तो बल्ब इस सूरत में भी आपके पास ग्लो हो जाएगा, ठीक है। 2 कंडीशंस पर आपका बल्ब ग्लो करता है और 2 कंडीशंस पर आपका बल्ब ग्लो नहीं करता। यही आपकी एक्टिविटी के एंड पर उन्होंने आपसे क्वेश्चनिंग भी की हुई है, तो बेटे आप आंसर जरूर राइट कीजिएगा इनके। टॉर्च बल्ब हैज 2 टर्मिनल्स एंड अ बैटरी हैज 2 टर्मिनल्स टू। Can you say in how many ways the 2 terminals of the bulb can be connected, the 2 terminal of a battery?
तो अब यहाँ आप बता सकते हैं कि 2 वेज में, यानी ए और बी जो आपकी डायग्राम है, आप अपनी बुक को अपने पास रखें और उसमें देखिए ए और बी जो डायग्राम है वहाँ पर जो है बल्ब ग्लो नहीं होगा, ये टर्मिनल्स ठीक नहीं थे। और जो सी और डी डायग्राम है, ये कनेक्शंस, ये सर्किट बिल्कुल एग्जैक्ट थे और यहाँ पर बल्ब ग्लो हो जाएगा। ठीक है बेटे। नेक्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को हम अगेन जो है वो डिस्क्राइब करेंगे डिटेल के साथ। इसमें मैं आपको फिर से बताऊंगी that how many terminals, what is the direction of the current, and in which way you have to connect the connecting wires with the battery or the cell. So electric circuit, as you know that start में हमने पढ़ा है कि बैटरीज क्या करती हैं, अपने अंदर केमिकल्स होते हैं इनमें जो केमिकल एनर्जी स्टोर करते हैं एंड दे प्रोवाइड अस the chemical energy in the form of electrical energy. Electric circuit is a combination of the battery connecting wires and the device to be operated. For example, a bulb device जो है जिसे आपने ऑपरेट करना है, इस डायग्राम में देखिए बल्ब है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बैटरी है जो सेल है या बैटरी है, एंड स्विच है जो कंट्रोल कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ करंट। यानी स्विच जो है वो क्या करता है, करंट की कॉन्टिन्यूस फ्लो को और करंट को ब्रेक करना कंट्रोल करता है स्विच। अब क्या करना है आपने, फिर से आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम्स में इन्होंने फोकस किया हुआ है डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन क्या है फ्लो की, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट पॉजिटिव टर्मिनल प्रोवाइड कर रहा है करंट, ठीक है, बोथ एंड्स जो हैं वो वन साइड पर कनेक्ट की हुई हैं, तो बल्ब करंट का फ्लो नहीं होगा, 2 टर्मिनल्स कंबाइन नहीं होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इसको तो सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल पर मिला ना करंट, पॉजिटिव पर तो नहीं मिला, तो इसका सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ बल्ब का। नेक्स्ट डायग्राम में भी आप देखिएगा डायरेक्शन ऑफ द करंट वो बता रही है आपको कि पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और वो आ रहा है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। बल्ब का जो कनेक्शन है, बल्ब का सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, सेल बैटरी जो है अपना कंप्लीट सर्किट दे रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इसको कंप्लीट सर्किट प्रोवाइड नहीं हो रहा, इसका सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, इसके नेगेटिव एंड को, बल्ब के नेगेटिव एंड को करंट सप्लाई नहीं हुआ। अब नेक्स्ट डायग्राम आप देखिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और नेगेटिव टर्मिनल अटैच हुआ हुआ है बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये पॉजिटिव टर्मिनल अगेन करंट जो है वो दे रहा है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो इसका सर्किट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब ये देखिएगा एरोहेड्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल के पास, और ये पॉजिटिव टर्मिनल करंट दे रहा है बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल को। आप एरोहेड को जरा गौर से देखिएगा, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बल्ब सप्लाइज द करंट टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, यहाँ बल्ब का सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ सिमिलरली दिस पॉजिटिव टर्मिनल सप्लाइज द करंट टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस नेगेटिव वायर्स सप्लाइज द करंट और ट्रांसफर द करंट और चार्जेस टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है बेटे, अब अगर आप देखिए मैंने आपको बताया था स्विच, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्विच, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट वर्क भी दिया हुआ है, मॉडल वर्क भी दिया हुआ है, यू हैव टू प्रिपेयर मॉडल ऑन दैट। स्विच ऑन एंड स्विच क्लोज। व्हाट इज स्विच ऑन एंड स्विच क्लोज? स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, आपका ये कनेक्टिंग वायर जो है एक दूसरे को कनेक्ट कर रही होंगी, करंट सप्लाई कर रही होंगी, कॉन्टिन्यूस फ्लो बना रही होंगी। यहाँ स्विच ओपन है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फ्लो करंट का नहीं बनेगा। अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने इजी वे यूज किया, एक बटन होती है, आपको पता है स्विच डिफरेंट टाइप के यूज करते हैं ना हम, प्रेसिंग स्विच भी होते हैं, जैसे आप अपनी यूज करते हैं घरों की बेल्स देने के लिए ना, डोर बेल्स में आप प्रेस करके रखती हैं, इस टाइप का स्विच। आपकी टॉर्च में जो बल्ब होते हैं वो स्लाइडिंग स्विच यूज कर रही होती हैं, आप स्लाइड करते हैं बल्ब को ऑन ऑफ हो जाते हैं। इसके अलावा घरों में जो हमारे ये इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं हम उसे प्रेस कर देते हैं, ऑन हो जाता है, अगेन प्रेस करते हैं वो ऑफ हो जाता है, ये प्रेसिंग स्विच होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस हैं जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को कंट्रोल करने के लिए। इन्होंने इजी सर्किट, इस टाइप का सर्किट बनाया हुआ है आपकी बुक में, आपको दिखाने के लिए क्या करेंगे, जो वायर है, कनेक्टिंग वायर जो है उसी को जो है वो तोड़ देते हैं ना, बीच से ब्रेक कर देते हैं, तो सर्किट ब्रेक हो गया, यानी इसी को एज अ स्विच यूज किया, तो इस वक्त स्विच क्या है, ओपन है। ठीक है, जब आप इसे ज्वाइन कर देंगे, आप इसे जोड़ देंगे तो स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है बेटे,
नेक्स्ट आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक स्विच. आई ऑलरेडी टोल्ड यू द टाइप्स ऑफ द स्विच एंड फंक्शन ऑफ द स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ. नेक्स्ट बेटे ऑन ऑफ बटन्स अगेन आपको बुक रीडिंग से ही बता देती हूँ. पेज नंबर 138 है आपका. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस. ऑन ऑफ बटन्स यूज़ करती हैं आप हाउस होल्ड सर्किट्स में. फिर पुश बटन्स और स्लाइड बटन्स यूज़ करते हैं. स्विचेस जो यूज़ होते हैं टॉर्च में, ट्रांजिस्टर्स में और टॉयज में. फिर प्रेस्ड बटन्स होते हैं स्विचेस विच आर यूज्ड इन रिंग डोर बेल्स. इसके अलावा बेटी आप आ जाएं आपके फंक्शन पर. इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ अ टॉर्च. एक टॉर्च की इलेक्ट्रिक सर्किट को देखें आप. इस टॉर्च में इसको बहुत केयरफुली देखिएगा. ये मेटालिक इसकी बेस होती है जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो कनेक्ट हुआ होता है. एज अ रिफ्लेक्टर भी काम करती है. इसमें रिफ्लेक्टिंग मटेरियल यूज हुआ होता है. दीज आर टू सेल्स. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. इस सीरीज में कैसे सीरीज कनेक्शन कैसे हुआ है. पॉजिटिव एंड जो है वो कंबाइन है विद द नेगेटिव एंड ऑफ एन अदर सेल. और इसके अलावा आप ये देखिएगा कनेक्टिंग वायर्स आपको नजर आ रही हैं और एक स्लाइडिंग बटन से या स्लाइडिंग स्विच से कनेक्टिंग वायर्स की ऑन एंड ऑफ जो है वो कंट्रोल की जा रही है. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सेल्स हैं और ये यहाँ पर आपके बल्ब लगा हुआ है. आप इस तरह की जो टॉर्चेस होती हैं उसके बल्ब से भी एक बल्ब का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं. अब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब एक आपको जो है एक टॉर्च बल्ब के लिए ज़रूरी होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बता रहे हैं आपको वो क्या है. सेल हैं. फिर कनेक्टिंग वायर्स यूज हुई हुई हैं जो कनेक्ट कर रही हैं सेल्स और जो कंट्रोल कर रही हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो बना रही हैं. फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो बल्ब है आपका. और फिर स्विच है जो स्लाइडिंग बटन या स्लाइडिंग स्विच एज अ जो है वो यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स. वन इज अ कंडक्टर एंड अदर वन इज अ इंसुलेटर. इंसुलेटर आर व्हाट एंड कंडक्टर्स आर व्हाट. कंडक्टर्स आर मटेरियल्स that can conduct something, means that can store something. मीन्स वो मटेरियल जिनमें से करंट गुजर सकता है, करंट पास हो सकता है. लाइक योर बॉडी, आपकी बॉडी जो है उसमें से करंट गुजर सकता है. करंट लग जाता है ना हम सबको. तो क्या है, मीन्स वी आर द कंडक्टर्स. हमारी बॉडी को करंट जो है वो पाथवे प्रोवाइड, हमारी बॉडी करंट को पाथवे प्रोवाइड कर देती है. इसके अलावा बेटे ऐसे मटेरियल और भी जिनसे करंट गुजर सकता है लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर. दीज आर कॉल्ड एज द कंडक्टर्स. एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल which do not allow to pass out the current. जो करंट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती है. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ये जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं हमारे घरों में भी वायरिंग हुई हुई होती है वो प्रोटेक्ट की हुई होती हैं प्लास्टिक कवरिंग से ना. अब प्लास्टिक जो है इज द इंसुलेटिंग मटेरियल जो प्रोटेक्ट कर रही है करंट की वायर्स को भी आपस में मिलने से और करंट को बाहर भी फ्लो करने से. मींस ऐसे मटेरियल जो करंट को अपने अंदर से अलाउ नहीं करती गुजरना, फ्लो करना अलाउ नहीं करती. दिस आर कॉल्ड एज द इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स की एग्जांपल जो है बेटे वो वुड है, प्लास्टिक है, रबर ग्लास है, थर्मोकोल शीट्स हैं और हवा है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इंसुलेटर्स. इसके साथ बेटे आपकी बुक में जो वर्क पेजेस हैं आपको वो व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे. इसके बाद हार्ड कॉपीज में आप स्कूल से भी रिसीव कर सकते हैं. आपके नोट्स आपने वर्क पेजेस सब सॉल्व करने हैं. आफ्टर दैट योर एक्सरसाइज कम्स एंड यू ऑल्सो हैव टू लर्न द एक्सरसाइज. आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो मार्क करवाएंगे हम और आपके नोट्स में भी अवेलेबल होंगे फोटोकॉपीड फॉर्म में भी. आप वो यहाँ भी मार्क कर लीजिए. पार्ट ए एंड पार्ट बी यू हैव टू complete learn it, and part C, from part C the question number 1, 3, 4, 7 and 8. From part D the question number 2 and question number 5 you have to learn it. question number 5 आप बुक पर ही सॉल्व करेंगे. इसके साथ भी आपका होमवर्क है, आपको चैप्टर नंबर 13 जो है वो थॉरली रीड करना है, बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपने. एंड लर्न ऑल वर्क पेजेस प्लस एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में पार्ट ए भी आपने कंप्लीट लर्न करना है और सी और डी के स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैंने आपको मार्क भी करवाए हैं. इसके साथ आपने बेटे मॉडल करना है कंप्लीट. आप एक वर्किंग मॉडल बनाएंगे जिसमें आप शो कर रहे होंगे ओपन एंड क्लोज स्विच को आप यूज करेंगे. इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट जिसमें एक बल्ब यूज करेंगे, आप बैटरी यूज करेंगे और कनेक्टिंग वायर्स यूज करेंगे और स्विच होगा जो ऑन ऑफ कर आप उसका फंक्शन दिखा सकेंगे. इसके साथ बेटे यूट्यूब चैनल पर आपका ये जो मिस कर जाते हैं स्टूडेंट्स जूम पर
वो यूट्यूब पर हमारा चैनल है गेरिजन स्कूल सिस्टम के नेम से, आप वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको जितने भी अपडेटेड फ्रेश लेक्चर हैं थर्ड टर्म के आप वो रिसीव कर सकें और अंडरस्टैंडिंग ले सकें। हमारे फेसबुक पेज गेरिजन स्कूल सिस्टम का फेसबुक पेज है, वो भी लाइक कीजिएगा, वहाँ पर भी वीडियोस शेयर किया करें और अपने कमेंट्स जो हैं वो दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।